راج صاحب نے ایک بات بولی, کہنے لگے آل آؤٹ ہو رہی ہے ہماری ٹیم, جون میں, لیکن مجھے لگتا ہے وہ آل آؤٹ تھا نو لاس. انہوں نے ہمیشہ فائدہ ہی دیا. ان کی جو ٹیم تھی وہ ایکسپیرینس ٹیم تھی, وہ ہر محاذ پہ اچھی طریقے سے لڑنا اور کھیلنا جانتی تھی. تو یہ جیت کے ہی جا رہے ہیں. چونکہ بشیر صاحب کے ساتھ کچھ مہمان حضرات آئے ہوئے ہیں, مہمان خصوصی ہیں ہمارے, جیسے کہ بشیر صاحب ہمارے مہمان خصوصی, ویسے ان کے ہمراہ جو آج اس تقریب میں جنہوں نے شمولیت کی ہے, ہم ان کا بھی مشکور ممنون ہے. اس سے پہلے کہ بشیر صاحب کو میں دعوت دوں, ان سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی شخصیت الطاف احمد صاحب, جو کہ ان کے آبائی گاؤں کے نسواتی ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کے ہم سب کو اپنے خیالات سے نوازیں. الطاف صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم. عزیزان محترم, اب یہ سبجیکٹ بہت مختلف ہے, لیکن ایک خوشی مجھے ہوئی. عمر میں آپ سب مجھ سے کم ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو آج مجھے یہاں سے ایک انسپائریشن ملی, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پرائمری پاس, مڈل پاس اور زیادہ سے زیادہ میٹرک پاس پٹواری صاحبان ہوا کرتے تھے. میری نظروں میں ہے, میں نے کام کیا ہے ایز رینج بشیر احمد دیو صاحب سے. وہ تحصیلدار بدروا تھے اور میں رینج افسر وہاں تھا ڈیمارکیشن میں, آپ کے ریونیو سے منسلک ڈپارٹمنٹ. غلام محمد گبرو صاحب نائب تحصیلدار رہے ہیں, مڑوا میں بھی تھے, دچن میں تھے. ان وقت وہی نائبت نوگام ایک ہی تھی, بعد میں تحصیل دنی پر دچن میں تھی, سب پتہ ہے ان کو. کیا کہوں, وقت ہونا چاہیے تھا. کبھی موقع آئے گا, اگر کھانڈے صاحب کی تقریب پر آپ نے تو پہلے ہی دعوت دی اپنی ایسوسیشن کو, موقع آیا انشاءاللہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, لیکن آپ مجھے دعوت دے دیں گے اور مجھے ٹائم دے دیں گے. میرے عزیز, اقبالیات پر آپ کا عبور بہت اچھا ہے. نکل کے صحرا سے جس نے سلطنت روما کو پلٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے قدسیوں سے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سفینے برگ پا بنا لے گا, آشیاں مورے ناتنا اپنا, ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا کے پار ہوگا. مجھے بہت خوشی ہوئی, میں کیا تعارف کروں گا. مجھے بہت خوشی ہوئی آج کہ ایسا طبقہ ہے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں جس کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کو, اور خاص کر ایڈمنسٹریشن میں ایسے لوگ ہیں. مجھے ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں, کھانڈے صاحب کو پتہ ہے, شاید میں 2 دفعہ یہاں اینکر رہا, 26 جنوری کا اور 1 دفعہ 15 اگست کا, کیا کشتواڑ میں. آپ ابھی بچے ہو, میں نے 79 میں اپنے سفر شروع کیے. بدرا وغیرہ میں کہیں دربدر ہوتے تھے پڑھنے کے لیے. اور انسپیکشن جب میں رینج افسر یہاں رہا ہوں 7 سال کشتواڑ میں, مجھے رینجر کے نام سے لوگ جانتے ہیں, حالانکہ میں 11 سال ڈیفو رہا اور لاسٹ پر میں ایز ڈیفو مڑوا ڈویژن ریٹائر ہوا. اور
बशीर साहब के इस आज फंक्शन में मैं नहीं आता हूँ, आपने नहीं देखा होगा मुझे। हाँ, जब अंग्रेज सिंह जब डीसी था उसके वक्त में कुछ पार्टियाँ होती थी, वो मुझे बुलाते थे, इनको पता है बहुत। और इनके साथ ये उन दोनों गिरदावर थे और नायब तहसीलदार थे हमारे मीर साहब। एक इंस्पेक्शन हुआ था रोशनी एक्ट में, किसी को ज़मीन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बहुत एक जुर्रत की बात है। नंबर कहीं हस्ती का था, दिखाया गया था इधर सेमना वाजा गाड़ी में किसी को। मैं रेंज अफसर किश्तवाड़ था और मेरे अजीज ये थे गिरदावर। इंस्पेक्शन हो गया, बहरहाल दूध का दूध और पानी का पानी। और इनकी तहरीर अभी भी मेरी फाइल में है। वाकई आपने बताया कि ये लोग कुछ थे ऐसे थे ना, ये अनमोल हीरे थे डिपार्टमेंट में। इसकी मैं तारीफ नहीं बताऊंगा, शायद आपको पता नहीं होगा किसी को। ये मेरा सन इन लॉ है, मेरे बड़े भाई की बेटी इसको है। और दूसरा भी एक रिलेटिव मेरा है, पता नहीं यहाँ कि निकल गया, जलालुद्दीन मीर, उसको मेरी बहन की बेटी है। तो ये जो है मेरा सन इन लॉ है। बहरहाल अदब एहतराम में बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये अदबदार लोगों में शामिल था और बहुत, बहरहाल आप जानते हैं इसको किया। बाकी रहा मौलवी साहब वगैरह, इनके साथ तो हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। इनके वालिद साहब तो हमारे घर के फैमिली मेंबर थे। बाकियों को भी मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे एक खुशी, बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे एक खुशी हुई बात में यह है कि भाई अजब दुनिया है ये सहरा, अजब सहरा है ये दुनिया। इसमें शामो सहर किसी का कोच किसी का मकाम होता है, ये चलता रहता है सिलसिला। और फिर का उधर राजौरी पूंछ में जाना, दो चीज़ आदमी रा रसानत बेजोर, यके आबदाना दोम खा के गोर, ये दो चीज़ें पहुंचा देती हैं। और फिर ये देखो आप एडमिनिस्ट्रेशन का फुकदान, आप मुंसलिक हो इन चीज़ों से। ये चीज़ें आप कहीं बड़े फोरम पर बात बता सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है ही नहीं। एक नायब तहसीलदार है, वो इसी महीने में रिटायर हो रहा है और लास्ट पर हम इसको कहाँ दरबदर करने जा रहे हैं। ये अच्छा शुगुन नहीं है, ये अच्छा शुगुन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। देखा है मैंने, आपको अर्ज की है कि एक डिवीजन में 250 से 300 मुलाजिम हुआ करते हैं, उन पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। और गस्टेड रैंक के ऑफिसर होते हैं, 4-5 ऑफिसर होते हैं डिवीजन में, जो डीडीआर होते हैं, गस्टेड रैंक के होते हैं, फिर उन पर कंट्रोल करना तो आज तो रहा ही नहीं मेरे भाई साहब। लेकिन एक बात है, खुशी है, ये मुगल साहब वगैरह ये तो मेरा अजीज़ है, इनके बाप के साथ जितनी किताबें जब वो निकालता था वहाँ से, आप देखेंगे, मैं इनको पता होगी न, वो उसको नोट लिखकर मुझे वो गिफ्ट करते थे और मेरे पास तमाम वो किताब थे ना। ये लोग थे, मैं सबको जानता हूँ, आपको नहीं जानता हूँ, आपके वालिदैन को जानता हूँ, सभी को जानता हूँ। लेकिन एक खुशी हुई मुझे आज, अल्लाह गवाह है, कि हमारे पास जो असासा है ना, वही मैंने बता, बस काफ़ी है यही एक चीज़ कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखे से सनती। बहुत ही अच्छा किया आपने। अभी ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आज, आप देखेंगे ये पुराना है ना, पुराना जो स्टफ़ है, इसको निकलने तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह न करे कि आपके एसोसिएशन में ये चीज़ें हों। ये ऐसा फॉरेस्ट में भी हुआ करता था, अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वो ऑफिसर रहे ही नहीं, वो इत्तेफाक रहा ही नहीं। ये कब हुआ करता था, जब अनपढ़ फॉरेस्ट गार्ड प्राइमरी पास, मिडिल पास और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं मैट्रिक पास हुआ करता था। आज तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फॉरेस्ट गार्ड लगता है। एक दफ़ा एक फॉरेस्ट गार्ड लग गया, मेरे साथ बहुत लोगों ने काम किया है, हमारे जुन्नैद मलिक है ना, आज वो पॉलिटिक्स वगैरह में कुछ है, उसने एज फॉरेस्ट गार्ड मेरे पास ज्वाइन किया। मैं रेंज अफसर किश्तवाड़ था, 12 बाद में उसने नौकरी छोड़ दी। एक लड़का आ गया मर्सरी कार में आ गया, वो बशीर अहमद शाह, उन दोनों यहाँ डेफो थे, तो वो ऐसे वो गोल एक वो कुछ वो बनियान वगैरह लगी थी, आ गया तो सीधा डेफो के कमरे में गया। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन हुआ करता था, अब नहीं रहा है वो। तो उसने कहा अच्छा भाई साहब आप आए हैं तो हुक्म कीजिए कैसे आना हुआ।
उसने कहा, उसने कोई कागज़ निकाला, उसने कहा ना ये मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, तो आई हैव बीन अपॉइंटेड एज फॉरेस्ट गार्ड। अब तो आप समझो कि आसमान टूट गया। कहता कि ये वक्त आ गया, तो कहता भाई ये तो महकमा जंगलात है, तो आप ये बहरहाल उसने कहा नहीं ये थोड़ा मैं ऐसे ही काम करने के लिए आया हूँ। अभी भी वो काम कर रहा है, अब जंगलात में वो काम कर रहा है क्योंकि घर की मजबूरियाँ होती हैं। उसने कहा नहीं बाद में मैं जल्दी केस वगैरह करने वाला हूँ ना, एग्ज़ाम पास, फिर मैं एसडीएम आऊँगा और आप मेरे पास आ जाएंगे दरखास्त लेकर। ऐसे भी जहन खराब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सरमाया है इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। खुदा करे आप फले सुने, आपका ये जो है ये आपका मयार जो है अल्लाह इसको बुलंद रखे और आप बुलंदी उस बुलंदी को छू जाएं जहाँ से तमाम हमारी इस कम्युनिटी को फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और पैरों में दरिया कुछ नहीं। बहरहाल आपने मेरे अजीज़ की हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की, मैं आपकी तमाम एसोसिएशन का दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर हूँ। और आप कहते हैं इनको आप अभी ये जुदा होने वाले नहीं थे, लेकिन आपने प्रोग्राम बना दिया है, अभी आप दिन गिर रहे हैं इसके, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। ये आप दिल की वो हमदर्दी से कह रहे हैं कि कहते हैं कि खांडी साहब उधर गाँव का है तो कभी जल्दी जल्दी ही निकल जाए, लेकिन ये गाँव वाले जब शहर में करते हैं ना अपना मकाम पैदा, फिर ये निकलने वाले नहीं होते। मैं भी गाँव से तलक रहता हूँ, मैं भी उधर का हूँ, तो मैं भी यहाँ आपके मरकज़ में रहता हूँ, यहाँ बस स्टैंड के साथ। बहरहाल मैं आप तमाम अजीज़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपको ऐसा ही मोहब्बत और इत्फाक और इत्तेहाद दे दे और फिर आप आगे बढ़ें, इस अपने इल्म को लोगों के लिए आप इस्तेमाल करें। और जो वो होता है ना सदका जारिया, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और जो आपको दर्द है दिल में गरीबों की खिदमत करने का, तो ये आपके दिल में मुइज़्ज़म होना चाहिए। जब मैं डेफो मड़वा रहा आपको मैं यकीन आप पूछ कर, मैं जो हम देते हैं ना दरख्त वगैरह स्टेशन पर, मैं दफ्तर के लिए नहीं, मैं कैंप लगाता था दक्षिण में, मड़वा में, यहाँ उडील वगैरह में। मैं रेंज अफसर पाडर भी रहा हूँ, रेंज अफसर नागसिनी भी रहा हूँ, रेंज अफसर किश्तवाड़ में 7 साल रहा, रेंज अफसर छात्रों में रहा, टूडा में रहा, बाकी कहाँ। मेरा एक तरीका कार ये था, ये है कि भाई गरीबों की खिदमत करनी चाहिए। बहरहाल मैं इस वक्त मेरा कोई मौजू है ही नहीं, मैं किसी चीज़ पर बोल ही नहीं सकता, वक्त आए कभी बोल, लेकिन आज अल्लाह गवाह है, अल्लाह मुझे गवाह है, आज दिल खुश इतना हुआ। मुझे पता है ना, हमारे महताब राम पटवारी, पता नहीं लोग आप जानते हैं, वो जिंदा है, महताब बहुत अच्छा काम जानने वाला, काशी राम पटवारी। इसी तरह हमारा रुस्तम अली था, बाद में वो नायब तहसीलदार रिटायर होगा, रोशन लाल भंडारी काम इकट्ठे किया है, तेगचंद भंडारी काम इकट्ठे किया है, बड़े लोग थे जिनके साथ काम किया। लेकिन इतना, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज की ना, मिडिल पास मैट्रिक पास, उससे ऊपर नहीं था। आज अल्लाह का फजल है, आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और पढ़वा भी सकते हैं। सिर्फ इतना ही, आप समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं। कानून पढ़ना बहुत आसान है, कानून को समझना बड़ा मुश्किल है, और उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इम्प्लीमेंट करना उससे भी बड़ा मुश्किल है। और इल्म वही है जो आप फील्ड में जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ चलाएं, और जो आपके सुपीरियर्स हुए उनको अपना लोहा मनवाएं, आप उसको काबिलियत कहते हैं। ये नहीं कि आप पर कोई मुसल्लत हो जाए, ऊपर से मुसल्लत हो जाए, फिर हम महकूम बनकर रह जाएंगे। तो वो महकूमियत नहीं होनी चाहिए। यह अल्लाह का फजल है कि आप में इतना पोटेंशियल है। मैंने गेस कर लिया, क्योंकि मैं 2019 में रिटायर हो चुका हूँ। बड़े IAS ऑफिसरों के साथ काम किया है, बड़े जो जहाँ किश्तवाड़ का एक विरसा रहा है, जो यहाँ डेफो रहा है, वो बाद में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ J&K रिटायर हुआ है। एक बड़ी मशहूर बात थी, जो किश्तवाड़ में डेफो रह गया उसने प्रिंसिपल चीफ रिटायर होना है, और वैसा होता था। उन लोगों के साथ काम किया है, बड़ा एक्सपोजर था। वक्त कभी मिलेगा शेयर आपसे करें, लेकिन आज आपने मुझे खुश कर दिया, बहुत खुश कर दिया। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब रखे। और बशीर अहमद जो है मेरा अजीज, उसकी जो कोई शिकायत नहीं थी, वो खुशहाल गुजरे। आमीन। अब आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।